ان کے اوپر آپ نے جو ہے نا اٹیک کر دیا کہ انہوں تو نہیں. بھائی ان کی مرضی. ہماری عورتیں پوری آزاد ہیں. ہم ان مولویوں کے جال میں نہیں آئیں گے. ہماری عورتیں بالکل جیسے مردوں کو اجازت ہے نا ایسے پوری عورتوں کو ہونی چاہیے. یہ انسانیت ہے. یہ نہیں کہ مردوں کو حقوق زیادہ دیے جائیں عورتوں کو کم دیے. ایسے مولویوں کو ہم ایسے لیتر پریڈ کرنے کے یاد ہی رکھیں. اگلا سٹیپ ہمارا یہ مولویوں یہ ٹیررز ہماری ختم کر لینے دو. بعد میں ہم مولویوں کے اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے یہ مولوی کو سیدھا کرنا ہے. بھائی سب کی شکلیں سامنے آ رہی. یہ منحوس ہے. انٹرنیٹ شروع ہوا ہے, سب سے انٹرنیٹ شروع ہوا, اور آج ہم لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سب گوروں نے ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے ان گوروں کو. انہوں نے کمپیوٹر ایجاد کیا. دعا کرو یہ دیکھو. بالکل بالکل گورے زندہ باد, گورے زندہ باد, انگریز زندہ باد. بالکل اس قابل ہیں. تے مردہ جڑا مسلمان نے ساری دیہڑی گوڈے گٹے دھوندے نے, نک وکل موت سمجھ رہے, کھا کھا کے حلوا ٹھڈ کڈے نے, دھونا چھڈیاں. کوئی دسو کہ مسلمان نے کوئی چیز ایجاد کی ہو, مجھے ایک بھی بتا دو. بھائی اب تک دیکھیں جب وہ شاہجہاں بنا رہا تھا تاج محل اپنے بیوی کے نام پر, انگلینڈ میں اس وقت یونیورسٹی بن رہے تھے, وہاں یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی, اور انڈیا کے آگرہ میں وہ اپنی بیوی کا مقبرہ مقبرہ بنا رہا تھا. اس مقبرے سے کون پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کے نکل رہے ہیں. ہاں یہ تو ہمارے بادشاہوں کا حال تھا, نام شاہجہاں, اور ہم لوگ اپنے بچوں کا نام بھی شاہجہاں رکھتے ہیں. واہ رے واہ, جس نے کوئی کام صحیح نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا. سائنسدان نے آئی سی ٹی پی نہیں بنایا, انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس, ڈاکٹر سلام صاحب نے بنایا ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر سلام صاحب نے اب اگر بنایا تو ان کو یونیورسٹی میں اب نہیں پڑھایا جا رہا ہے, ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ایک مکتب فکر ہونے کی وجہ سے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی کرسچن بھائی بھی پاکستان میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بھائی یہ عدیل گمن پوچھ رہے ہیں, نام پوچھ رہے ہیں, اب پاکستان کو ٹھیک کیسے کریں یہ بتائیے. جی 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 بالکل جی بالکل جی جی بالکل بالکل. آپ لوگ محنتی تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان کے لوگ محنتی ہیں. دیکھو میں بھی جرمن میں بیٹھا ہوں, سارے تقریباً بیرون ملک ہے. ہم پیسہ کما کے, میری 70 سال عمر ہے, میں 5-6 لاکھ روپیہ کما کے پاکستان بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے, اپنی فیملی یا پاکستان میں جا رہا ہے, تو یہ نظریہ یہ جہاد ہے. میری بات سنو, میری بات سنو, بات تو سن لیں. Wie lange sind Sie in Deutschland? Sprechen Sie gut Deutsch? 30 Jahre. Ja, ابھی بات سنیں نا آپ, ہم لوگ ادھر آ کے بات بلا ہی دی ہے, بھول جانا چاہیے آپ کو. تسی ہونا ہے دسو نا ایکچوئل جیڑی پرابلم ہے اس ٹائم پاکستان چ چل رہی ہے. میری گل سنو, اسی سارے پاکستان جی کریں مسٹر زاہد. تو میں تانوں یہ کہنا چاہنا کہ 2-4 لاکھ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا آپ بات کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں, ملا کے بارے میں. میں ایک چیز, میں نے ابھی 2019 میں کینیڈا میں شفٹ ہوا ہوں ود فیملی. پہلے میں مینیجر تھا میزان بینک میں, اس سے پہلے بینک الحبیب میں تھا. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے, وہاں پہ کچھ نہیں تھا مجھے پتا کہ پاکستان میں کیا چل رہا. لائک عمران خان آیا, اس نے کچھ شعور دیا لوگوں کو. اب جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا پاکستان کے 3 کیٹیگری پاکستان ہے. ایک پاکستان وہ ہے جو میرا پاکستان ہے, جس میں ایک بیڈ کے اوپر 3 لوگ وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اور ان کو وہ بیچارے مر رہے ہیں, ان کی بچیاں اٹھائی جا رہی ہیں. وہ میرا پاکستان ہے. ایک پاکستان ہے جو آرمی کا پاکستان ہے, وہ آرمی کا پاکستان کینیڈا سے 10 گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, ان کے کبھی بندے ایسے نہیں مرتے, ان کے کبھی بندے پرابلم نہیں آتی, ان کے کبھی بندے کڈنیپ نہیں ہوتے, ان کے کبھی بچیاں اٹھائی نہیں جاتی, کچھ نہیں ہوتا آرمی کے پاکستان کو. چلو ٹھیک ہے, ہم نے آپ کی بات سر سن لی ہے, آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ ترقی کیوں نہیں کرتے, دوسرے یورپ ترقی کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں ترقی کرتے؟ پاکستان کے مسلمان کیوں نہیں ترقی کرتے؟ سنے تو صحیح سر, اس کے اندر جو یہ جو ملا ہے نا, یہ کریٹڈ بائی آرمی. اگر آرمی چاہے, میں یہ مانتا ہوں, آرمی چاہے تو پاکستان امریکہ سے آگے نکل سکتا ہے, آرمی چاہے. اور آرمی نہیں چاہے گی کیونکہ یہ پپٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بٹھایا ہوا ان کو.
इसी वजह से तारा अमेरिका ते ला रहा ना, तो बस फिर आपको पता है, फिर आप छोड़ दें, ये कभी नहीं सही होने मैं वाला। सर ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹਮਸਾਏ ਆਪ ਹੋ, आप उसके लिए निकलेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ हम बात करेंगे। सर मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मेरा नाम जाहिद हुसैन है, ठीक है, तो मेरी फैमिली उधर रहती है और मुझे पता है ये आर्मी सब कुछ करवाती है, मैं ये कहता हूँ ये सब कुछ आर्मी करवाती है। बच्चे भी, अगर आपको मजे की बात बताऊं, अगर इनका कोई क्रिमिनल एक्ट होता है ना, उसी वक्त बंदा पकड़ा जाता है, और कुड़ी उठा के कोई बंदा ले गया, कुछ भी हो गया, ये इन्हें पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये सिस्टम उनका चलता ही नहीं उनके लिए, ये सिस्टम चलता ही माफिया के लिए है। उनके पास सारा कुछ है, उनके पास ड्रोन भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास सब कुछ है। सर जी मेरी गल ते सुन लो, गल ते सुन लो, मेन पॉइंट लो, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब कुछ Solution वाले सबको जाओ। मालूम है। जी सर जी, बाजी प्लीज मेरी एक आप सोल्यूशन की तरफ आए ना। अभी असल मसला है जुल्म को सहना। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे हमसायों की बच्ची उठा के ले जाती पुलिस, ना बोलना सर जी, इंटरफेयर ना करो, छोटी सी गल सुन लो। प्लेटफॉर्म हो जिसके, उसके लिए प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर सारे बंदे सिंसियर हों, ये सारे माफिया ना हों, ਇਹਦਾ खाने ਮਤਲਬ वाले 23 ना ਕਰੋੜ हों। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈ ਕੇ ਯੂਰੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਮੰਗਦਾ ਵੇ ਖੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2-3 ਓਵਰਸੀਅਰ 2-3 ਲੱਖ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਖੂਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ठीक है, गोली खानी पैनी है। सर उसके लिए टेक्नोलॉजी मांगती है, आप इस काबिल बने, यहाँ की जो कम्युनिटी है वो आप अपने एमपीज के पास जाएं, उनको ढेरों लेटर दें। आप जहाँ जहाँ रह, मैं कनाडा में रह रहा हूँ, मैं अपनी एमपी से बात करूं। मरना पैना, ठीक है, जाके किनिया को गोलियां 5-10 हजार बंदा मरेगा, जिहड़ी सुत्ती कौम है जाग जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अच्छा, मुझे ये ठीक है, बताएं 5-7 हजार उत्ते साडा बैठा ना जी। आजाद कश्मीर में क्या किया ये बताएं, क्या हुआ? सर जी आजाद कश्मीर छोटा है, उन्होंने कोल नहीं, उत्थे भी थोड़े पपट्स नहीं बैठे हैं, समझदे हो पे, फिर भी वो लड़े ने, उन्होंने लड़े ना, क्या फायदा हुआ लड़ने का? मरे? मेरे टॉपिक का सत्यानाश इन सब ने कर दिया। मेरा टॉपिक ये है कि हम तरक्की क्यों नहीं करते, क्रिश्चियन तरक्की करता है। इधर आओ सर जी, तरक्की रोटी ते पूरी कर लो, सरकार गल सुनो, रोटी पूरी कर लो, फिर तरक्की भी कर लो। हम माफिया के अंडर है और हम शॉर्टकट में हैं। आप यहाँ पे नहीं, हम चाहते हैं हम रात को अमीर बन जाएं। जब क्रिश्चियन आपसे आगे निकल गए हैं, क्रिश्चियन आपसे आगे निकल गए हैं, तो आप मुसलमान मियां मिठू क्यों बनते हैं? कि आप लोग जो है आर्मी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप लोग क्या पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए होंगे ना, तो उनकी तो वैसी हालत खराब होगी, उन्हें पता है कि वो कुछ बोलेंगे तो फिर आर्मी क्या उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। क्योंकि मैं खुद आर्मी एरिया में रहती हूँ, बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके लिए आप कर क्या सकते हैं? आप लोग आर्मी के खिलाफ बोल तो लेंगे, क्या आप इस कंट्री में आके कोई एक्शन ले सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो बातें करके बहस करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? सिद्धराज जी एक मिनट, ये कंट्रोल जो है ना सिर्फ आर्मी की वजह से है। अगर ये पागल भेड़िए हैं, ये सिविलियन जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर सारा इन पे एक मिनट अगर इन पे सारा छोड़ देंगे ना तो ये आपको खा जाएंगे, ये आपको खा जाएंगे। आप लोग आर्मी खिलाफ बात तो कर रहे हैं, चीफ क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? बचाने से कुछ होने वाला है? चीफ क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? मैं कोई इमरान खान का कोई हामी नहीं हूँ, सुन ले प्लीज। इमरान खान मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ आर्मी चीफ खुल के आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उस बेड़े को उठाए। क्यों नहीं उठाता आर्मी चीफ? क्यों नहीं ये तो सब जानते हैं कि इमरान खान को आर्मी ही बाहर नहीं आने दे रही, ये तो सबको पता है। इमरान खान मैं ये नहीं कह रहा, मैं इमरान खान को नहीं समझता। मेरी बात सुन, मेरी बहन मेरी बात सुन लें। मैं कहता हूँ आर्मी ने ये पुपेट क्यों रखी हुई है? आर्मी के लिए क्यों पार्लियामेंट को पुपेट समझता हूँ? क्यों रखी हुई है पुपेट? आर्मी आए, एक इंस्टीट्यूट बनाए, अपनी आर्मी उन्होंने सही कर दी है। आपने यहाँ बात कर ली, आप पपेट समझते हो? आपके यहाँ बात कर लेने से कोई हल निकल आया? आप मुझे बताओ। आपने यहाँ बैठे 10 लोगों का टाइम वेस्ट किया, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ यहाँ बैठ के बात कर रहे हो।
आप कर तो कुछ नहीं आप सकते। यहाँ बैठ के भाषण, देखिए यहाँ बैठ के भाषण देना आसान है पर कोई एक्शन लेना मुश्किल है। तो यहाँ बैठ के आप 10 लोगों का टाइम वेस्ट करोगे, 10 लोगों का दिमाग खाओगे, लेकिन करोगे कुछ नहीं आप। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा हूँ, मैं भी पाकिस्तान आर्मी के साथ, जर्मनी से मैं साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान मैं भी आर्मी के साथ हूँ, लेकिन वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो उसकी करना बात कर लो। रहा हूँ। अच्छा, मैं सिद्रा साहिबा को सलाम करना चाहता हूँ, आपको कबूल है? वालेकुम सिद्रा साहिबा, सलाम। ताहिर आप खान साहब जानती- कैसे हैं आप? जी, जी जी मेहरबानी। बिल्कुल जानती हूँ मैं आपको। अरशद बड़े अहमद दिनों- कैसे हैं? अरशद अहमद साहब कैसे हैं आप? आपसे मुलाकात नहीं हुई, बड़े 2 महीने हो गए। जी जरा मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ आप तो मैं रात कम को- कम यूज कर रही हूँ टिकटॉक। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चले। जी मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेता हूँ, दिल तो नहीं चाहता नकवी साहिबा से, तो फिर थोड़ी देर बाद हाजिर होता हूँ, ठीक है? सबको सलाम। मैं आर्मी के साथ हूँ। देखें, मेरे रिश्तेदार हैं इमरान खान। इमरान के जो कज़न है ना जावेद बरकी, वो मेरी फर्स्ट कज़न है, लेकिन मैं ना तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ ना इमरान को। 2008 में मुझसे उन्होंने पूछा था, डायरेक्टर IB थे भट्ट साहब, कि हम इसको लाना चाहते हैं, तो ये लाती है आर्मी एजेंसियां लाती हैं, चीफ ऑफ स्टाफ को भी एजेंसियां सबको मालूम है। हाँ, इमरान को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वो मुल्क को एक सिविल वॉर की तरफ लेकर जाता है। तो मैंने तो फिर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा, डोंट माइंड अगर कोई उसका वो है, और मैंने कहा कि ये इसको इल्म नहीं, तमाम पार्टी में सारे लोग एजेंसियों के होते हैं, कभी एक आता है अच्छा, कभी दूसरा। आप ना जाने से पहले सिर्फ एक बात पहली दफा बोल रहा हाँ, हूँ, सॉरी आई एम जी सॉरी। जी जी ऐनक बोले उतार बोले। दो आप, माशाल्लाह जवान लड़कियां ऐनक उतारो। क्या आप यहाँ डिस्कस कुछ इतनी हो रहा है। माशाल्लाह खूबसूरत नहीं, जवान, आप कोई सवाल पूछ रही थी उतारो। मुझसे। ताहिर खान आप जा रहे हैं ना, उतारो, जाने चलो, से यार, पहले क्या सिर्फ एक बात है। आंसर, माशाल्लाह, जाने से पहले ना माशाल्लाह, सिर्फ क्या एक आंसर दे दें कि ये जो आजकल हालात है ना, सबसे ज्यादा किसका हाथ है इसमें? ये जो आजकल हालात हैं पिछले 3-4 साल से, और ये देखिए, किसकी वजह से? किसी के कहने पर आपने ऐनक उतार ली है। मैं तो मैंने एक पहली दफा मैं बोला हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ भाईजान से। हाँ इसके बाद वो तैयार आप, हाँ करती- जरूर इसके बाद। नहीं, मुझे जवाब देने दें, फिर देखे। जी 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 हाँ, आप बोलिए। पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हो, तो किस सेंस से आप कर रहे हो? कहते मैं हो कि आर्मी इमरान को, खान जो है वो मैं गलत इंसान है। पाकिस्तान, नहीं, आप मुझे बात करने दे। वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 42-43 अरब हो गई है। मुझे भाईजान तैयार खान साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइए। नहीं, मुझे बात करने देना, मेरी बात खत्म पहले हो। इनको आप बात कर कर रहे लेंगे। थे, मैं पहली दफा बोला हूँ, मैं पहली दफा बोला हूँ। नहीं, आप देर 10 से दफा बैठा है, इसको बोले। बात करने दें। नहीं, आपने ही बात को करनी बात है। करने इसके दें। बाद मैंने इसके सिर्फ एक बाद आप question ही है मेरा। बोलेंगे, इसके बाद आप ही वो ये बोलेंगे। है हाँ। 5-6 नहीं, अरब मेरा डॉलर- क्वेश्चन है, वो बोले, मेरा क्वेश्चन है, मेरा सिर्फ नहीं, बाद में करें ना, प्लीज खामोश हो जाएं जरा। 5-6 अरब डॉलर हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट है, और 42 अरब जो है वो हमारी रेमिटेंसेस आई है। मैं पाकिस्तान एक महीना, मुझे हुकूमत ने कहा था कि आप मशीर बन जाएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, तो मैंने उन्हें ये कहा, मैं रिटायर्ड हुआ हूँ ग्रेड 20 में 2001 में, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप मुझसे क्या एडवाइस लेना चाहते हैं। तो जो मेरी बातें उनके साथ हुई, मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए एजुकेशन का, आप स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाए, रिसर्च इदारे बनाए, सड़कें बनाए, इंडस्ट्रियल वो बनाए, और वो चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल तो पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, मैं हर चीज पे नजर रखता हूँ। और मेरा जवाब खत्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान इज फ्लाइंग है, हाँ बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। बहुत ओके, आगे नेक्स्ट निकल आप गया है, बात अभी करें। रोकना मुश्किल हो हाँ, गया है। अब आप बात कीजिए, अब आप बात कीजिए। ये तैर खान साहब है ना, पता नहीं वो जी, किसी जी। बरकी साहब का नाम भी ले रहे थे, इमरान खान साहब का नाम भी ले रहे थे, मुझे नहीं जी, पता जी, जी। वो इनको जानते या नहीं जानते, ठीक है ना। सही आप बोलें। जी, लेकिन बात यह है कि अभी आप थोड़ा सा सिर्फ बी ऑनेस्ट होके सिर्फ इतना बता दें कि अभी तक जो भी जंग चल रही है ना पिछले 3 साल से, वो क्लियरली बिटवीन आर्मी एंड इमरान खान है, ठीक है ना। तो इमरान खान नहीं कह सकते, क्या- इमरान खान तो बीच में से हट चुका है, अब आवाम के साथ हो रही है जंग। ये तो
जी इमरान खान या सब अरशद अहमद साहब म्यूट पे बैठे हुए हैं। अरशद अहमद साहब कैसे हैं आप? अरशद साहब, अरशद अहमद से मेरी मुलाकात हुई भी पाकिस्तान में, ये यूएस में होते हैं। ये पाकिस्तान आए थे तो मैं इनसे मिली थी, बहुत अच्छे इंसान है और इनसे हमारी बड़ी अच्छी बातचीत है। आज मैंने आपको इनको देखा आपकी ब्रॉड पे तो मैं आई। आप भी आए ना, अमेरिका आए हमारे पास ठहरे, हमें भी मिले, अमेरिका आए। अगर अमेरिका से आप ब्रेडफोर्ड में आए, हमसे भी मिले, हम भी अच्छे इंसान हैं, ऐसी बात नहीं। वो ये है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। आपने कहा कहाँ पे तरक्की कर रहा है भाई? जावेद बरकी कि मैंने ये आपको बताया है कि मैं और इमरान कंटेम्प्रेरी रहे। इमरान के वालिद, मेरे वालिद एक साथ नौकरी करते रहे, बड़ा ताल्लुक रहा इस खानदान के भाई। वो जो भी हुआ ना, ठीक है ना, उसको छोड़ो ना। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान आर्मी जो कर रही है अच्छा कर रही है। किस तरीके से आप कह रहे हो अच्छा कर रही है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी नहीं है, ये एजेंसियों की जंग है। इमरान को पता नहीं, एजेंसी किसकी है? एजेंसी किसकी है? एजेंसियां पाकिस्तान की। इधर भी इमरान के गिर भी सब एजेंसियों को लेकर जैसे ड्रामा है। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे लतीफ़ा ना सुनाए, मुझे अच्छी बात सुनाए। लेकिन आप मुझे बार बार कहना सुनाए ये ना। वो ये है कि एक लड़की औरत थी, तो उसने अपने बेटे को कहा कि दादी जान तशरीफ़ ला रही हैं, अब रोज़ाना नया ड्रामा होगा। तो दादी जान आई तो बच्चे ने वो टीवी लगाया, वही पुराने ड्रामे थे। उन्हें कहा मैं सारा पुराने ड्रामे। ये कमेंट कर रहा है कि कॉल पे पिक कर लेंगे आपको, कोई लाला दी जान कोई कॉल पे पिक करने के लिए कमेंट कर रहा है बंदा। जी लाला दी जान देख लें जी। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जी हम सुन रहे हैं। हाँ जी, वो बच्चा जो है वो टीवी पे चेक कर रहे हैं, सारे पुराने प्रोग्राम आ रहे हैं। तो वो अपनी वालदा को कहते हैं आपने कहा था जब दादी जान आएंगी तो रोज़ाना नया ड्रामा होगा। वो उनकी बात कर रही कि दादी जान के आने से वो होगा। बात यह है कि इमरान को समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्या समझ नहीं आ रहा उसको समझ। दूसरा ये है कि आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इमरान। 3.5 साल मैंने एक मजमून लिखा है, वो मजमून का मैंने टाइटल ये लिखा, द डिजास्टर्स मूव्ड बाय इमरान अहमद खान ने पिकअप द कॉल। और साथ मैंने ये भी लिखा, डिजास्टर्स मूव्ड बाय इमरान अहमद खान। पता नहीं है ना, पता नहीं कौन एकदम से आके गालियां देना शुरू कर देते हैं, वो बहुत बुरा होता है। गालियां देंगे तो आप फौरी ड्रॉप कर दीजिएगा। सही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच उठाने के लिए मैम, रियली अप्रिशिएट एंड शुक्रिया सिद्रा जी। ये समझ नहीं आई होस्ट, मैं इतनी ज्यादा मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, तो फिर बात होती, मैं थोड़ी देर बाद। लेकिन जो बंदे जो है ना आर्मी और इमरान खान के दरमियान में जो है ना कहना चाहूंगा, जाहिर करना चाहते हैं उनको वेलकम करें, उनको पूछे। जी मैम, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। भाई बात सुने पहले, बिल्कुल हाँ, आप बोलिए। हर बंदे का अपना, लेकिन पहले बात सुनो, ठीक है ना? हाँ पहले बिल्कुल बात सही सुनो। कह रहे हैं आप। इस वक्त आर्मी और इमरान खान आमने सामने है, ठीक है ना? बिल्कुल। किसी बंदे को अगर फर्क बताना है ना कि इमरान खान गलत है या आर्मी गलत है, तो वो आके बात करे, हम सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, और हर किसी की सुने, हर किसी की बात जी। पहली तो बात ये है कि ये ब्लेम करना छोड़ दें, इमरान खान, नवाज शरीफ और आर्मी, ठीक है जी। जब आप ब्लेम करना छोड़ देंगे ना किसी को, खुद कुछ करके दिखाएं। मैं सिद्रा मैडम की बात के नीचे बैठ के सुन रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं सिवाय क्रिटिसाइज करने के। ये पॉइंट इनका मुझे तो वोट तो हम लोग देते हैं ऐसे लोगों को, जो भी हमारी गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट बनती है हमारे अपने वोट्स की वजह से बनती है। जब वोट देने के टाइम आता है तब लोग सोचते नहीं है, मुंह उठा के वोट दे देते हैं। जब कोई बंदा आ जाता है, अथॉरिटी मिल जाती है, उसके बाद वो अपनी चलाता है, फिर लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आपको आपकी बात काटेंगे, इस वक्त वोट की गवर्नमेंट नहीं है, ये आप बिल्कुल गलत कह रही हैं कि वोट की गवर्नमेंट है। वोट की तो गवर्नमेंट नहीं है। जब ये आप खुद का मानना तो 90% लोगों ने वोट दिया इमरान खान को, किधर गई वो? जी बात सुने। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आर्मी को बुरा कहना छोड़ दें, आर्मी को खुदाया बुरा कहना छोड़ दें। आर्मी है तो पाकिस्तान है, ठीक है जी। बुरा पॉलिटिशियंस को,
ठीक है जी। आप जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं ना, आपकी फैमिलीज जो हैं, चाचे मामे ताए वालदेन, जो पाकिस्तान में आजादी की सांस ले रही है फौज की वजह से, खुदा न खास्ता फौज हट जाए बॉर्डर से, एक तरफ से चाइनीज आएंगे, एक तरफ से हिंदू, एक बात सुने अब मेरी बात सुने, एक तरफ से हिंदू आएंगे, एक तरफ से पठान आएंगे, एक तरफ से ईरान वाले आएंगे, ठीक है जी। और जो आके फिर करेंगे ना, जो आके वो कुछ जो वो आपके साथ फिर करेंगे, मेरी बात सुनिए, बात क्रिटिसिज्म जो है ना उसको लेना भी जो है ना एक अच्छी बात होती है। आप जो ब्लेम करते हैं ना, फौज ने ये किया, फौज ने वो किया, कल आप फौज वहां से हटा दे, फिर देखे पाकिस्तान का क्या बनता है। आपने जो हिंदू और पठान है ना, वो आपकी फौज की वजह से रखे हुए हैं। अच्छा, आपने जो मेंशन किया ना हिंदू और पठान, वो सिर्फ जो क्रिएशंस हैं वो आपकी फौज की वजह से हैं। अच्छा, मैं और यार इन्होंने मानना ही नहीं मैडम कुछ, इन्होंने सिर्फ फौज को बुरा कहना है। इनको एक पॉलिटिशियन ने बोल दिया कि फौज ये काम गलत कर रही है। बात ही नहीं करनी। मेरी बात सुनो, दुनिया में अभी जिस यार आपने जब एक माइंड सेट बना लिया कि फौज ही गलत है, और यार फौज कौन से, मुझे ये बताओ, फौज कौन सी पार्लियामेंट में फौज बैठी थी? और यार फौज तो गलत है, कौन सी पार्लियामेंट में बैठी है भाई मेरे? बाहर बैठ के कौन सा पॉलिटिशियन फौजी है? ये बाहर कौन सा पॉलिटिशियन फौजी है? जरा पाकिस्तान आके बोल के दिखाएं कि फौज गलत है। यार मुझे ये बताओ, किस पार्लियामेंट में, किस प्रोविंशियल असेंबली में फौजी बैठा हुआ है? तो मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ सर, मुझे बताएं ना, फौज गलत है, बताओ मुल्क कौन चला रहा है? फौज चला रही है? आप कहेंगे हाँ, कैसे चला रही है भाई? वजीर आजम फौजी है, सदर फौजी है। अच्छा सुनिए, साजिद की बात सुनिए, साजिद की बात सुनिए, साजिद क्या कह रहे हैं? सिर्फ फौज मैडम, सिर्फ फौज खराब है इनके कहने से। चलिए साजिद को बोलने का मौका दें प्लीज। अच्छा हाँ, साजिद बोल लेना चाहिए, सबको मौका देना बोलने का। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। आप ये पाकिस्तान में फौज और मौलवी के अलावा कोई बंदा खराब नहीं है। MAZ साहब एक सेकंड जरा, आप कह रहे हैं कि फौज जो है वो खराब नहीं है, फौज बहुत अच्छी है। मैं मानता हूँ फौज अच्छी है, मैंने नहीं कहा फौज बहुत अच्छी है। नहीं मैं आप तो यार काटने को दौड़ते हैं, सुनते हैं नहीं आप। मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा। थोड़ा छुरी के नीचे दम ले आपने। जी हाँ बोलिए यार, ये अरशद अंकल किधर चले गए? मत दूसरों को भी सुने। जी बात सारी ये है कि फौज ने सारे काम खराब कर रही है, कुछ भी कर रही है। फौज अच्छी है या खराब है? मुल्क में पानी है, बिजली नहीं, है, नहीं, गैस है, नहीं, क्या चीज है? लोग बच्चे अपने खुदकुशी करके मार रहे हैं, ये कौन पूछने वाला है? तो वैसे ही मर रहे हैं लोग। फौज बहुत अच्छी है, बेहतरीन फौज है, सब कुछ हमारे पास है। दुश्मनों से तो बच रहे हैं हम, अपने आप मर रहे हैं। बॉर्डर की रखवाली करना। हाँ, बॉर्डर तो बॉर्डर पे रखवाली सबकी है। हाँ नहीं, रखवाली तो चारों तरफ। पता है कि आपको पता है आपके बजट का कितना परसेंट फौज लेती है? जितना परसेंट भी लेती हो मेरे भाई, जितना भी लेती है मेरे भाई, वो काम भी तो करती है भाई। 70% लेती है वो आपके बजट का। 70 नहीं सर, 80% लेती है। लेकिन आप ये पाकिस्तान में बैठ के बोलेंगे भाईजान, जी नहीं, सब कुछ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर बैठ के बोलोगे। मुझे तो इनको लगता है अच्छा चलो, पाकिस्तान में अगर बैठ कर नहीं बोल सकते तो इसका मतलब हम बाहर बैठ कर भी नहीं बोल सकते। सिर्फ आप बोल ही सकते ना, प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो पता लगे। जो पाकिस्तान में नहीं, आप पाकिस्तान आए, अच्छा चलो, आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है मतलब ये ना कि जो पाकिस्तान में खाएं उनके सामने फिर बोले तो मतलब आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैडम, मैं बता रहा हूँ। धमकी है ना? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैडम। देखें, इमरान खान साहब फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो इलेक्शन हारे हुए थे, ठीक है, फौज नहीं बनवाया। और जो इलेक्शन मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए थे, तब फौज ने दिखाया कि जी आपकी क्या है जब आप हमारे अगेंस्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर फौज जिताया था पहला इलेक्शन, क्यों आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि फौज ने जिताया था? दूसरा इलेक्शन तो वो खुद जीते थे। छोड़े ना, दूसरा इलेक्शन तो वो खुद, वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन को देखें,
आप अपनी फौज के अगेंस्ट नहीं हो सकते, ये क्यों मैं नहीं हो आपको सकता? बता क्यों नहीं हो सकता? मेरे भाई, ये अगर आपने कहना है तो आप पाकिस्तान आए तो फिर बोलें, तो फिर आपको लग गए पता। मतलब उठा लिया जाएगा। पाकिस्तान में होना पड़ता है। नहीं तो आप इसका गलत मतलब कर रहे ये हैं, नहीं, बाहर आप भी- लोगों बाहर के भी सामने उठा गलत लिया कर रहे हैं, आप जाएगा। अपने पूरे अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं ये सोशल मीडिया पे या- बिठा के। ये अपने है मुल्क को बेगैरत बदनाम लोग, कर रहे ये हैं, है बहुत बेगैरत गलत बिल्कुल लोग। बात है, बदनाम कर रहे हैं आप दुनिया लोग, की आप लोग सबसे बिल्कुल अल्लाह बेगैरत माफ फौज करे, अल्लाह पाकिस्तान की माफ फौज है। करे। आप यहाँ पे बैठ के बात करते हैं, अल्लाह उधर माफ बैठ के करे, उनको अल्लाह सलूट माफ मारते करे। हैं। या तो दुनिया दो की दो सबसे तरफ नहीं बेगैरत खड़े। फौज पाकिस्तान की फौज है। नहीं सर, नहीं औरतों की वीडियोस बनाती है। नहीं, सारे नहीं है लोगों सर, की- सबका नाम नहीं लें आप, सबका नाम नहीं लें प्लीज, सबका नाम नहीं लें, सारी क्यों ना फौज का लूं? नाम क्यों ना नहीं लूं? क्या कर लोगे मेरा आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अरे कुछ यार, नहीं कर आप- सकता। आपकी तो आपके आईडी पास ही नहीं है, तमीज़ है बात आपके तो करने चेहरा ही की। नहीं है सामने, तो आप क्या आप आ जाओ मेरे सामने। सर, अभी बात अभी ये आप है खोलो, मैंने कि खोलता हूं। मैं अभी तो आप खोलो, कैमरा मैंने खोल के खोलता बात हूं। करूंगा आपसे, जी, लोग आपको कैमरा आप खुलवाना वीडियो है, मैं गोल्डन खोल के किंग बात बात करूं। कर रहे हैं ना, गोल्डन मैम, किंग सुनिए, गोल्डन किंग सुनिए, सबसे जी, जी। अच्छी बात यही लगी कि ना आप बहुत तहम्मुल से बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जितने भी नून लीग से या फौज के से रिलेटेड जो भी बात करते हैं जी। वो फौरन गालियों पे आ जाते हैं, नहीं, लेकिन गालियों आपकी वाली बात नहीं, हमें नहीं, नहीं, हिसाब से बात हमें है, आपकी गालियों बात वाला ये नहीं। अच्छी लगी कि ना आप बहुत तहम्मुल से बात कर रहे हैं, जी, ये आपकी thank you बात so बहुत much। मैडम अच्छी है। डिबेट होती है ऐसी, बातें डिबेट तामुल होती से है ही ऐसी। करनी चाहिए। आप यहाँ पे पढ़ा बैठ लिखा के- बंदा ऐसे ही बोलता है। आप हाँ। सिर्फ ये पाकिस्तान में ही लोग नहीं देख रहे और कहीं भी देख रहे हैं, आप ये बैठ के बिल्कुल। फौज को गुमराह नहीं करें। जी जी क्यों क्यों जी, आप बेगैरती को फैला रहे हो? फिर बेगैरती कौन को फैला बेगैरती रहे फैला रहा है? आपको क्या पता? मैं यार, बेगैरती हमारी फैला फौज ये- हमारी फौज मेरे हमारी भाई, फौज ये की बात जिंदगी आगे बना यार, रही है। साजिद भाई को बात करने दे, साजिद भाई को, हमारी- साजिद भाई यार, बात ये- करें। हमारी नहीं, फौज साजिद- को- सुनते ही नहीं है बात को। साजिद भाई को बात करने दें प्लीज, साजिद भाई को। देखें भाईजान, फौज हमारी सब अच्छी है, सब कुछ ठीक है। फौज जी। अगर थोड़ी सी अगर लोगों के पास बैठकर और इस मुल्क को ठीक करना चाहे तो ठीक हो सकता है मुल्क। बिल्कुल। ये मकसद है मेरा कहने का, बस। नहीं साजिद भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ फौज का काम नहीं, ये अवाम का काम भी है। मुल्क में जहाँ कहीं वही भी सीधी बात रेवोल्यूशन है, आया हमारे है, मुल्क को फंडिंग आती है बाहर से, अमेरिका वगैरह से हमारे मुल्क को हाँ। चलाता है, हमारी फौज को भी अमेरिका चलाता है, सीधी बात है। अब- हमारी जी। फौज ही मजबूर ये फौज भी है, बात है। सही बात है, हमारे- पैसों में चलती है, सीधी सी बिल्कुल बात। सीधी हमारा बात है। जो- सीधी बात है, हमारा- 100% सीधी बात ये है। बिल्कुल मैं सही कहा एक- सर। कुत्ते मैं ब्रिगेडियर एक बात जनरल कहना कितने चाहूंगा हैं? कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें जो भी जॉन हुआ कोटी आज को पिक तक, कर ले मैडम, नीचे और आपको ये बार बार जब बोल रहे तक हैं। जो भी जॉन गवर्नमेंट आती है, मैं ये नहीं कहता खान साहब अच्छे हैं या दूसरा बंदा अच्छा है या ये बंदा गलत है। पाकिस्तान को चलाने के लिए हमें हमेशा जो है IMF से कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है जी। जी जी और बिल्कुल। जी, और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम अब ये खान साहब को ब्लेम कर दे, 3 सालों में तुमने क्या किया है। ओ भाई, 25-30 सालों का गंद जो है वो 3 सालों में कैसे आई? वो उनके हाँ। पास कोई जादू का चिराग थोड़ा है कि वो बंदा जो है हाँ, वो हाँ। हिलाएगा और मैं हो जाएगा। इसमें उनको मैं भी इसमें एक नई चीज ऐड करूं, अगर आप लोग इस बात पे माइंड न करें। जी देखिए सर। सर, आप लोग ये समझते नहीं है कि अगर फौज ना होती तो आज हमारा मुल्क भी अफगानिस्तान, सीरिया मेरी बात और बताएं। इराक बन मेरी जाता। बात आपको सुनें। लगता नहीं अगर बिल्कुल। फौज ना होती तो? बिल्कुल सर, ये आपने बिल्कुल। कभी नोट किया? यही तो मैं कहता हूँ। करप्शन है हमारे मुल्क में, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम मेरी से बात कम सुनें। इराक तो नहीं बन गया, सीरिया तो नहीं बन गया, बिल्कुल अफगानिस्तान तो जान नहीं भाई, बन गया हमारी फौज की I वजह salute से you, सर। सर। मेरी बात यही सुनें, आप मेरी यही बात समझते बात नहीं मैं है सर। समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, यही मेरी बात बात मैं सुने, मेरी बात समझाने की सुने। ट्राई कर रहा हूँ। हमारी फौज से ज्यादा बेगैरत फौज आज तक दिन तक मैंने दुनिया में नहीं भाई देखी। भाई बात नहीं करनी, मैडम, आप मैं ये बात सॉरी नहीं टू से, इन भाई साहब के दिमाग में किसी ने घोल के डाल दिया कि फौज नहीं, बुरी मेरे है। दिमाग में नहीं इनको डाला किसी ने। मैंने इन्होंने ये देखा माइंड है अपना कि मेरी चेंज फौज करना ने है। मेरी औरतों की नंगी वीडियो बनाई है। सर आप अपना लो कैमरा जी। खोल के बात करें ना सर, ये यार। कैमरा खोल के क्या? बोलेंगे कि हम खोल के क्या बैठे हैं। किसकी रंगी वीडियो बनाई है फौज ने, आप बताएंगे जरा किसकी? जी हाँ, आज उस इनकी बात की फैमिली नंगी की। वीडियो बनाई है। अच्छा इनकी सर, मैं फैमिली आपसे एक की, सवाल पूछता ये हूँ। कह रहे हैं। मैं सर आपसे एक इनकी सवाल फैमिली पूछता हूँ। की? जी मैं एक लोगों सवाल को, जी पूछता हाँ, हूँ। लोगों को जी, जी। ब्लैकमेल सर, करने के मेरा लिए हमारी सवाल फौज आपसे ये है, ये जो सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी फौज में लोग काम कर रहे हैं, ये कहाँ हमारी से आए? फौज में ये कहाँ हमारी से आए हैं? फौज मुझे ने इसका बीचों जवाब पे दें। लोगों को गोलियां मारी हैं। हमारी फौज ने कश्मीर में लोगों को गोलियां मारी हैं। सर, हमारी फौज से सबसे और सर, पाकिस्तान की फौज में जो लोग आप आई हैं विटनेस है, वो कहाँ से आपने आए देखा हैं? है? सर बदमाशी करेंगे, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपको फिर ये वो तो सबक करना सिखाया पड़ेगा जाएगा। भाई। अच्छा, वो तो आप दुनिया की जिस मुल्क है, आप अगर मैं अभी भी- किस मैं मुल्क में आपका बैठे हुए हैं? आर्मी करूंगा, ये पूरी दुनिया आपका का लॉ है। आर्मी अगर मैं भी चीफ गलत काम करूंगा तो आपका मुझे आर्मी punishment चीफ मुझे जब चाहता है, वो कहता है कि
मेरी मर्जी का वजीर आजम बनेगा तो वो बदमाशी नहीं है। साजिद साहब कहाँ अवाम का चले गए? 90% का वोट जो है वो जो जिधर मर्जी जाए, ठीक है, तो मेरी मर्जी का वजीर आजम बनेगा तो वो बदमाशी नहीं है क्या?
इनको हमने इन सबको नीचे उतारा है। ये सब ये जो खातून आई थी ये एक एक करके सब बुला रही थी अपने सारे जान पहचान वालों को, जो हमें अंदाजा हो गया सबको था। बुलाए, हमें क्या लगे। जिस तरह की ये बहस कर रही थी। सिस्टर सजाद भाई ऊपर है, उनको पिक कर लीजिए प्लीज। जी एक भाई ये मिनट सारे आगे बेगारत हैं, ये सब बेगारत हैं। साजिद नजर नहीं आ रहे हैं, साजिद कहाँ चले गए हैं ये मैंने नीचे मेंशन किया ऊपर। मुंह से सच मान के भी फिर नहीं मान रहे। राजद अभी जी उसने को बोला comments कि इमरान छोड़ना खान नीचे। को हमने इलेक्शन जितवाया, तो उसका मतलब है फौज ने मदाखलत की, फौज इंटरफेयर करती है। क्यों करती है? हर जगह करती है, हर जगह करती है, क्यों पॉइंट पे करती नहीं है? आते। हाँ नहीं भाईजान, अब बात सुनिए, आप थोड़ा ना जरा सख्त बोलते हैं।